Hello everyone. Today we are going to discuss the numericals of chapter 3 current electricity. Topics of the numericals are current electricity, drift velocity, current density, electron mobility and relaxation time. This is the first numerical. Let's start from the easy ones. Calculate the number of electrons crossing a given cross section in 1 second to constitute a current of 1 ampere. जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। फिर हमें उस गिवन और टू फाइंड आउट का रिलेशन देखना है कि आपस में कौन सा रिलेशन है तो यहाँ पे सूट बैठता है। तो इन दिस न्यूमेरिकल करंट इज गिवन 1 एम्पियर, टाइम इज 1 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड. So relation is current I is equal to Q upon T and Q is equal to Ne, which we have already studied during quantization of charge. Then put the values. I is equal to 1 ampere, N upon T यहाँ पे हमें find करना है number of electrons per second and E is the charge of one electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Then rearrange. N upon T is equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19. Then solve it. We will get N upon T is equal to 6.25 into 10 raised to power 18 per second. Next question is, an electric current is established in a hydrogen gas discharge tube when a high voltage is applied across two electrodes in the tube. Gas is ionized. Electrons move towards positive terminal and positive ions towards negative terminal. What is the magnitude of current in the tube in which 3.1 into 10 raised to power 18 electrons and 1.1 into 10 raised to power 18 protons move past a cross-sectional area of the tube each second? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बट हेयर करंट विल बी ड्यू टू motion of electrons as well as motion of protons. We know that current flows in the direction opposite to the flow of electrons and in same direction as that of protons. So here we have to find the net current. So net current I will be equal to Ip plus IE. Ip is current due to the motion of protons and IE is current due to motion of electrons. Put the value of Ip and IE, the same formula we will use. I is equal to Q upon T and Q is equal to Ne. Then I is equal to NPE plus NEE upon T. यहाँ पे E कॉमन आ जाएगा, NP plus Ne into E upon T. तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है. Here NP and Ne represent the number of moving protons and electrons respectively. Put the values. तो ये आपने NP और Ne की वैल्यू पुट कर दी इनटू स्मॉल ई जो था दैट इज़ 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 और टाइम जो है वो 1 सेकेंड है. यहाँ पे 10 raised to power 18 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा 1.1 प्लस 3.1 ऐड करके ये बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 1.6 and just solve it. We will get current is equal to 0.672 ampere. Next question is, in the case of hydrogen atom, an electron moves in an orbit of radius 5 into 10 raised to power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. Calculate equivalent current. Further, charge is given. Charge on an electron is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? रेडियस. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट. रेडियस इज गिवन. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r is equal to
5 into 10 raised to power minus 11 meter. Speed of electron is given 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second, and we have to find the equivalent current. तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला पहले आपको यहाँ पे देखना है. n फॉर्मूला तो वही लगेगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, एंड Q की जगह पे आएगा NE. बट व्हाट विल बी n हेयर? n आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. n इज इक्वल टू स्पीड अपॉन लेंथ. स्पीड v अपॉन लेंथ आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस है 2πr. द फॉर्मूला इज सेम. चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, q इज इक्वल टू NE. I इज इक्वल टू Q अपॉन T, सेम फार्मूला, Q इज इक्वल टू NE अपॉन T. तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे यार v अपॉन 2πr इंटू E अपॉन T. तो v इज गिवन, E वी नो दैट, 2πr radius is given, T is 1 second. Put all these values and solve. We will get 1.12 into 10 raised to power minus 3 ampere. If 10 raised to power minus 3 is milli, then you can convert it. Current is equal to 1.12 milliampere. Next, Earth's surface has a negative surface charge density of 10 raised to power minus 9 coulomb per meter square. Potential difference of 400 kilovolt between top of atmosphere and surface results in a current of only 1800 ampere over entire globe. If there were no mechanism of sustaining atmosphere electric field, how much time roughly would be required to neutralize the Earth's surface? Given radius of Earth is equal to 6.37 into 10 raised to power 6 meter. Dear students, what is given in this question and what we have to find? Surface charge density of Earth is given, sigma. Sigma is equal to 10 raised to power minus 9. Potential difference is given 400 kilovolt. Current is given 1800 ampere, and we have to find how much time roughly would be required. टाइम फाइंड आउट करना है. करंट इज गिवन, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन. तो सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो सिग्मा का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया. सॉल्यूशन, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई. तो ये चार्ज का फॉर्मूला है, सिग्मा इंटू एरिया, एंड करंट इज गिवन. तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू सरफेस एरिया हो जाएगा अर्थ का 4πr², एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो Q इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा, एंड वी हैव टू फाइंड हेयर. करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इंटरचेंज करेंगे, T इज इक्वल टू Q अपॉन I. तो Q की वैल्यू पुट कर दो 4πr² इंटू सिग्मा, एंड I इज द करंट दैट इज गिवन 1800 एम्पियर. ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन. 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन, सिग्मा दैट इज आल्सो गिवन, I करंट दैट इज आल्सो गिवन. पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड सॉल्व. वी विल गेट टाइम T इज इक्वल टू 283.4 सेकेंड. Next question. Number density of conduction electrons in a conductor is 8.5 into 10 raised to power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? Area of cross section of wire is 2.0 into 10 raised to power minus 6 meter square, and it is carrying a current of 3 ampere. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो गिवन है आपको नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स n. उसके बाद हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, हाउ लॉन्ग मतलब आपने यहाँ पे टाइम निकालना है. वन एंड ऑफ द वायर टू अदर, लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, एंड करंट इज गिवन 3 एम्पियर. टाइम आपको निकालना है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे,
I इज इक्वल टू ANE/VD। इस फॉर्मूले से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू I/ANE। I is given, that is 3 ampere. Area is given, that is 2.0 into 10 raised to power minus 6 meter square. And number density of conduction electrons, that is given 8.5 into 10 raised to power 28. And E is the charge of electron, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Put all these values and solve. We will get 1.103 into 10 raised to power minus 4 meter per second. Then time taken by electron to drift from one end to another. हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आएगा T इज इक्वल टू लेंथ अपॉन स्पीड, लेंथ L which is given 3 meter and speed we have calculated here. So 3 upon 1.103 into 10 raised to power minus 4. Then solve it. We will get 2.72 into 10 raised to power 4 seconds. Then convert it into hours. We will get approximately 7.5 hours. Clear? Next question. An aluminium wire of diameter 0.25 centimeter is connected in series with a copper wire of diameter 0.16 centimeter. A current of 10 ampere is passed through them. Given number of free electrons per unit volume of copper wire is 10 raised to power 29. What we have to find? Current density in aluminium wire. Second, drift velocity of electrons in copper wire. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? दो वायर्स हैं हमारे पास। एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर है, और दूसरी वायर है कॉपर वायर जिसका डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एंड नेट करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर। द करंट पासिंग थ्रू दीज वायर्स इज 10 एम्पियर. Number density per unit volume of copper wire is given and we have to find the current density. तो सबसे पहले हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाई J. J is equal to I upon A. Okay, I current is given 10 ampere. Area, diameter of aluminium wire is given. Convert this diameter into firstly radius, and then area we can find. Area A is equal to pi r square. Pi की वैल्यू पुट करो 22/7. यहाँ पे डायमीटर था 0.25 सेंटीमीटर. पहले इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा 0.25 डिवाइड बाई 2, बट सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करना है इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर. आर स्क्वेयर है तो होल स्क्वेयर आएगा. सॉल्व इट, वी विल गेट द एरिया. Current is given, area is calculated, then put the values and solve. We will get J is equal to 2.04 into 10 raised to power 6 ampere per meter square. This is the first part. Now we have to find the second part, drift velocity of electrons in copper wire. Copper wire में हमें drift velocity निकालनी है. Let's see. Drift velocity of electrons in copper wire, formula is same. VD is equal to I upon A dash NE. जो आपको रिलेशन पता है I is equal to ANE/VD, तो that relation is used. VD is equal to I upon ANE. Here current is given 10 ampere and number density of electrons in copper wire, that is given 10 raised to power 29 per meter cube. एंड E तो हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. एंड A डैश वी हैव टू कैलकुलेट हियर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर A डैश इज इक्वल टू सेम फार्मूला पाई आर स्क्वेयर. तो यहाँ पे डायमीटर गिवन था 0.16 डिवाइड बाई 2 रेडियस आएगा. कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर इंटू मीटर्स, तो मल्टीप्लाई किया 10 रेज टू पावर माइनस 2 से. देन फार्मूला पाई आर स्क्वेयर. Solve it, area we get it 2.01 into 10 raised to power minus 6 meter square.
Now put all these values and solve. Vd is equal to I upon A dash Ne. I given है यहाँ पे 10 एम्पियर, A dash हम कैलकुलेट कर चुके हैं, N and E is also given. Put all these values and solve. We get 3.1 into 10 raised to power minus 4 meter per second. This is the next question. If free electron density of copper is 8.6 into 10 raised to power 28 per meter cube and resistivity of copper at room temperature is 1.7 into 10 raised to power minus 6 ohm centimeter, find relaxation time for the free electrons of copper. Given मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमें पता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg होता है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी पता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर. एंड व्हाट इज गिवन? एक तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है n, और दूसरा दे रखा है हमें रेजिस्टिविटी. अब हमें देखना है वो कौन सा रिलेशन है जिसमें नंबर डेंसिटी, रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम आपस में रिलेट होता है. देन दिस इज द फॉर्मूला. रो इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वेयर टॉ. रो क्या है? रेजिस्टिविटी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम. यहाँ पे टो और रो को इंटरचेंज कर देंगे, टॉ. तो टॉ इज इक्वल टू m upon n e square rho. I think all values are given. Okay, n की वैल्यू गिवन है 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर 28 पर मीटर क्यूब. रो गिवन है, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर. अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर minus 8 ohm meter. Then put all these values. Tau is equal to m की वैल्यू आ गई 9.1 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 31 एंड n की वैल्यू है, e की है एंड रो की है. पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड सॉल्व. वी विल गेट tau is equal to 2.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 seconds. Okay. Next question. If current flowing through copper wire of 1 mm diameter is 1.1 ampere. कॉपर वायर है जिसका डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर एंड करंट इज 1.1 एम्पियर. डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63 U एटॉमिक मास यूनिट. One free electron is contributed by each atom of copper. Find drift velocity of electron. Avogadro number is given, n is equal to 6.0 into 10 raised to power 23 per mole. तो हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है. तो आई थिंक करंट इज गिवन एंड डायमीटर इज गिवन. ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. Vd इज इक्वल टू I अपॉन ANE. तो यहाँ पे I इज गिवन 1.1 एम्पियर, डायमीटर इज गिवन 1 मिलीमीटर. फर्स्टली डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो रेडियस आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, फिर उसको मिली मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 3. सो रेडियस विल बी 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर. देन density of copper is given 9 gram per centimeter cube. This is the formula. Number density कैसे कैलकुलेट करेंगे? n एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई डेंसिटी डिवाइड बाई एटॉमिक मास. तो n 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू डेंसिटी इज गिवन इन CGS 9 and m atomic mass 63. Put all these values and solve. We will get the value of n. n is equal to 8.57 into 10 raised to power 22 पर सेंटीमीटर क्यूब. बट ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा n is equal to 8.57 into 10 raised to power 28
पर मीटर क्यूब। तो एन आ गया आपके पास, फॉर्मूला अब आपको पता है। दिस इज द एरिया कैलकुलेट करना है पहले। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14। आर आर आपने पीछे देखा था, डायमीटर गिवन था, उससे आपने रेडियस निकाली थी, तो रेडियस थी 0.5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एरिया आया यहाँ पे 7.85 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1.1 जो है वो करंट है, आई अपॉन ए एन ई था, एरिया है 7.85 इंटू 10⁻⁻7 ए, और आगे एन है आपके पास 8.57 इंटू 10⁻28 और ई है 1.6 इंटू 10⁻19। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, दो पार्ट हैं इसके। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9.0 into 10⁻³ kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5 U. Second part है इसका, compare the drift speed obtained above with thermal speed of copper atoms at ordinary temperatures. Second, speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. तो ये इसके दो पार्ट हैं, इसके आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसमें आपने क्या करना है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। आपने यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड ही निकालनी है, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप कहते हैं। तो व्हाट इज गिवन, एरिया इज गिवन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, करंट इज गिवन 1.5 एम्पियर, और यहाँ पे थोड़ा सा वही है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम आपको एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, और डेंसिटी आपको गिवन है 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और एटॉमिक मास भी गिवन है 63.5 U। तो यहाँ फिर वही प्रॉब्लम है, आपको n निकालना है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन में यूज़ किया था, n इज इक्वल टू कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई डेंसिटी डिवाइड बाई एटॉमिक मास। तो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। इतने ग्राम जितना उसका एटॉमिक मास होता है, उतने ग्राम जो है उसमें कितने होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻23। फिर आपने नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर, n इज इक्वल टू, तो ये वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई डेंसिटी डिवाइड बाई atomic mass. Just solve it, we will get n is equal to 8.5 into 10⁻28 per meter cube. Then area is given 1.0 into 10⁻⁻7 meter square. Current is given 1.5 ampere. Formula वही है, Vd is equal to I upon ANE. पुट ऑल दीज वैल्यूज, आई की वैल्यू थी 1.5, ए की वैल्यू थी 1.0 इंटू 10⁻⁻7, एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया है 8.5 इंटू 10⁻28, एंड ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व इट एंड वी विल गेट वी डी इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, -3 हटाएंगे, 10⁻³ हटाएंगे तो मिलीमीटर बन जाएगा। ओके,
बट यहाँ पे वही आपने नंबर डेंसिटी कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड डेंसिटी डिवाइड बाई एटॉमिक मास. लर्न दिस फॉर्मूला. देन दिस इज द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर. ये जो आपने वैल्यू फाइंड की Vd इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द सेकेंड पार्ट. कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव, जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया, विद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कॉपर एटम्स की थर्मल स्पीड क्या होती है वो कैलकुलेट करनी है हमने. और सेकंड उसको कंपेयर करना है विद द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स सी. तो एट ए टेम्परेचर T, thermal speed of a copper atom of mass capital M is obtained from the equation. ये इक्वेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी. हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBt. यहाँ पे kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो थर्मल स्पीड ऑफ इज टिपिकली ऑफ ऑर्डर ऑफ की बात कर रहे हैं. तो जो थर्मल स्पीड ऑफ एटम्स है दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ रूट kBt upon m. This is order of, not exact value. रूट kBt upon m. तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बताया आपको kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. इसको आप जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन फॉर कॉपर इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड. ये किसकी स्पीड है, एटम की, इन कॉपर मटेरियल. तो इसको अब हमने कंपेयर करना है फर्स्ट कंडीशन से. दिस फिगर इंडिकेट्स रैंडम वाइब्रेशनल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स इन ए कंडक्टर. अब इसको हम फर्स्ट पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एटम्स. तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था वो था 1.1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे हमने जो एटम की कैलकुलेट की है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻². तो जब हम फिर ऑर्डर ऑफ की बात करेंगे तो इट इज़ द ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो बहुत कम है. इट शोज दैट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच स्मॉलर, अबाउट 10⁻⁵ टाइम्स टिपिकल थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे आपने कंपेयर किया है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एटम्स. नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो था इसका, अब हमने उसको कंपेयर करना है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज ड्रिफ्ट मोशन. तो अब हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है. तो ये आप बेटा आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लासेस नहीं बट नेक्स्ट चैप्टर में. चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसमें आप स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग अलोंग अ कंडक्टर हैज़ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रोपेगेशन की स्पीड है वो है दे मूव विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जिसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आपने इसको कंपेयर करना है फर्स्ट कंडीशन के साथ. तो उसमें था वो 10⁻⁻³ डिवाइड बाई करेंगे आप 10⁸, देन यू विल गेट 10⁻⁻11. इट मीन्स ड्रिफ्ट स्पीड इज इन कंपेरिजन एक्सट्रीमली स्मॉल, स्मॉलर बाई ए फैक्टर ऑफ 10⁻⁻11. अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर बाय ए फैक्टर ऑफ 10⁻⁻11 टू स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम होती है और इस स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है. Thank you. Have a nice day.